Good morning, everyone. In today's class, I am going to introduce a very important concept of differential equations. This is the first class, lecture 1. So we'll begin with understanding what is a differential equation and then defining the order and degree of a differential equation. So differential equation is the equation containing independent variable, dependent variable. So what is the dependent and independent when I talk about say dy by dx? So x is referred to as the independent and y is referred to as the dependent variable. So equation involving the derivatives of the dependent variable is referred to as the differential equation. In short, generally we write DE. Few examples of the differential equation, as you can all see, dy over dx plus 5y is equal to e raised to the power x. और मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, दिस इज द अनदर पॉसिबल डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ डबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है. वेरी सून विल अंडरस्टैंड, विल कॉल दिस एज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. Then the differential equation can be of the following form, or it can be differential equation like this. So dy by dx or the double derivative or triple derivative and so on, they are involved with the constants, variables, their functions. They refer to as a differential equation. Next is the idea about the order of a differential equation followed by the degree. So order is the highest order derivative occurring in the differential equation, as the name suggests. And then we define the degree of a differential equation. It is the power of, kiski power? Highest order derivative occurring in the differential equation. It is important after it is made free from the radicals and the fractions. So I will explain that second statement via one example. So for a given differential equation, we first focus on finding out its order, and depending on the term which helped me to define the order, we then talk about the degree. So first thing, define order and then followed by the degree. There is very important note over here. In case, see, there are the differential equation which involve the terms like this. E की पावर डेरिवेटिव हो या log के अंदर dy by dx आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये साइन और कॉस में आ जाए dy by dx. In all such cases, simple rule, definition, degree is not defined. But हाँ, e की पावर x है, e की पावर y, log x, log y, इस तरह की टर्म्स हैं, then of course degree is well defined as usual. Let us begin with one example. Simple question. If we have say a one marker, write the order and degree of the following differential equation. So what exactly is required to be observed? First step, as already mentioned, first thing order and then degree. So order is referring to the highest order derivative, as I can clearly see this term. Second order derivative is involved, so its order will be 2. And now what is the power of this particular term here? Power means iski power kuch bhi nahi likha, means it is 1. So that will refer to as the degree of this differential equation.
consider few more examples to find the order and degree. So can anyone tell me first thing order followed by the degree. So what is the order of this differential equation? Anyone? What is the order? Third derivative is involved, तो order is clearly 3. और अब इस term की power क्या है? 2. So that will become the degree of this differential equation. Answer. Sometimes the question may be write the sum of order and degree. तो उस केस में obviously 5 हो जाता आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं. राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. रिकॉल इट इज मेंशन्ड दैट डिग्री कब पता चलती है? व्हेन द इक्वेशन इज मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स. रेडिकल्स मींस पावर्स वगैरह अगर आ रही हैं. यहां स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हुआ है, तो इसीलिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा इस केस में? Give me a second, my pen is not working. I'll reshare my screen. Yeah, it is not working, so I'll reshare. Yes. So check this out. Write the order and degree of this differential equation since the square root is involved. So let me rearrange the term like this. Bringing the derivative, the square root wali term separately. Squaring both the sides. So a square plus b square. LHS में a minus b का whole square का फार्मूला लगेगा. Then minus 2ab. And now RHS में when I open the square, so obviously square and square root cancelled out. Finally, जब आप terms को rearrange करेंगे, x square and then ये देखो ये like term है dy by dx, तो x square minus 1 into dy by dx का whole square minus 2xy dy by dx plus y square minus 1 is 0. ये मेरे पास बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है. और अब इसे देखकर हम बात करेंगे इसके ऑर्डर एंड डिग्री की. सो ऑर्डर इज क्लियरली dy by dx को देखकर डिसाइड हुआ 1, फर्स्ट डेरिवेटिव है सिर्फ, और इस टर्म को देखकर इसकी पावर 2 जा रही है,
इसीलिए डिग्री हो गई 2। So we have the questions. Find the order and degree, if any, of the following differential equation. तो order पहले और फिर हम बात कर रहे हैं डिग्री की. Order and degree. So let's quickly start with few of the parts. First part, clearly इसे देखकर 1 and 1. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो चलो यहां लिखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को देखकर 2 हो गया ऑर्डर, और डिग्री इसकी पावर क्या है 1, वो हो जाएगा. अब ये हम ऑलरेडी नोटेशन यूज कर चुके हैं, y डबल डैश डबल डेरिवेटिव है, तो इस टर्म को देखकर क्लियरली अगेन 2 and 1. नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें, ये इक्वेशन लिखी क्या हुई है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स. सो व्हेन आई टॉक अबाउट ऑर्डर, वो तो इस टर्म को देखकर 3 हो जाएगा, और इसकी पावर को देखकर वैसे मुझे डिसाइड करना चाहिए था कि इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, बट there is a term e की power dy by dx, and as rule we already have mentioned, check this out, अगर इस तरह की टर्म इन्वॉल्व हो जाती हैं उस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड. सो लर्न दिस, अंडरस्टैंड दिस, सो दैट अब इस केस में डिग्री क्या हम लिखेंगे, दैट इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली. सेम वे क्विकली बात करते हैं यहां राइट साइड में सेकेंड पार्ट. नाउ कैन एनीवन आंसर दिस सेकेंड पार्ट, क्या होगा? ऑर्डर इज 1, यस, और इसकी पावर देखकर डिग्री विल बी 2. नेक्स्ट टर्म क्या होगा आंसर, फोर्थ पार्ट का आंसर, एनीवन, फोर्थ पार्ट? बहुत इजी है, इसे देखकर डबल डेरिवेटिव था 2 आ गया, बट क्योंकि cos ऑफ dy बाई dx इन्वॉल्व हो गया है, इसलिए डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड. फोर्थ पार्ट, सॉरी सिक्स पार्ट, फिर क्लियरली 4 एंड नॉट डिफाइन, और एट्थ पार्ट में इसे देखकर डिग्री सॉरी ऑर्डर 2 हो जाएगा, और इसकी पावर है 1 एज योर रिक्वायर्ड आंसर. So based on this you have your NCERT exercise 9.1, very basic exercise. So I don't think I need to discuss any of the question, you can easily answer. एक फर्स्ट और थर्ड की बात करूंगा. व्हाट इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन, एनीवन? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट मिताली, समृद्धि, गुड. सो ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री क्या होगी इसकी, समृद्धि, थिंक अगेन. डिग्री साइन के अंदर देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया है, ये नहीं कि सिर्फ dy बाई dx हो, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, कोई भी डेरिवेटिव अगर ट्रिगो के अंदर या e की पावर में आ जाए तो डिग्री विल बी एक्चुअली नॉट डिफाइंड. यस, गुड. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री. Third question, okay, Mithali saying 2, and what about degree? तो इसे देखकर डिसाइड हुआ है ऑर्डर, और अब इसी की पावर देखी जाएगी तो वो 1 है, तो डिग्री विल बिकम 1.
ये नहीं कि मैं हाईएस्ट इसको पॉलिनोमियल मान लूं और इसको देखकर 4 कह दूं, तो ये गलती हो सकती थी। सो प्लीज केयरफुल अबाउट दिस। कंसिडर 11th क्वेश्चन एंड 12th क्वेश्चन। 11th में डिग्री पूछा है, 12th में ऑर्डर। फर्स्ट 11th का क्या है आंसर? क्वेश्चन 11th, एनीवन? 11th ओके, डी पार्ट, नॉट डिफाइन। चेक करिए, डिग्री पूछा है तो वो इस टर्म की वजह से नॉट डिफाइन हो गया। और 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑर्डर पूछा है, तो 12th क्वेश्चन में यस मिताली परफेक्ट, वो इसे देखकर डिसाइड हुआ, विच इज 2, योर रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन ए। After we identified a differential equation and how to find its order and degree, let us now talk about the journal and a particular solution of a given differential equation. Based on this, you have your NCERT exercise 9.2. So what do we mean by the journal and particular solution? अच्छा, journal और particular से पहले solution क्या होता है वो देख लेते हैं। So a function of the form y equal to fx plus c which satisfy the given differential equation. As the name suggests, कोई एक differential equation given है, अगर आप एक ऐसा y की वैल्यू बता देते हैं, कोई ऐसा फंक्शन जो उस differential equation को satisfy कर रहा है, कैसे satisfy कर रहा है? We'll consider few examples. तो वो उसका सॉल्यूशन है। अब बात करेंगे जर्नल सॉल्यूशन की। सो व्हाट डू वी मीन बाय द जर्नल सॉल्यूशन? सपोज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n इज गिवन। इफ इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स n आर्बिटरी कांस्टेंट्स, देन इट इज कॉल्ड अ जर्नल सॉल्यूशन। आर्बिटरी कांस्टेंट्स का मतलब क्या हो गया? a, b, c एंड सो ऑन। और अगर मैं बात करूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एज द नेम सजेस्ट पर्टिकुलर आ गया है, तो इसका मतलब अगर हम गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज दे दें टू आर्बिटरी कांस्टेंट, इसका मतलब हम मान लो किसी क्वेश्चन में a मान लो 1 है, b मान लो 2 है, c मान लीजिए -1 एंड सो ऑन। तो नाउ स्पेसिफिक वैल्यूज आर गिवन टू द आर्बिटरी कांस्टेंट्स a b c। सो इस केस में वो अब कहलाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब चेक करते हैं कि मीनिंग क्या हुआ है वाया फ्यू एग्जांपल्स। एवरीवन चेक आउट दिस ऑन योर स्क्रीन। वेरीफाई दैट y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन x is the solution of this differential equation. चेक करिए, चैप्टर 5 में जब हमने डिफरेंशिएशन की बात करी थी, वहां हम इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। Exactly similar questions we already have done in book 1 derivatives में। So basic idea क्या है? आपको ये y दिया हुआ है, y की वैल्यू, आप इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। Derivative, I assume you all know how to solve it. And then you consider the LHS. LHS मेरे पास ये गिवन है, जो भी रिजल्ट मुझे वेरीफाई करवाना है। So consider the LHS, substitute the values, बस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दी, dy by dx की वैल्यू रख दी एंड y की वैल्यू रख दी। y तो मेरे क्वेश्चन में ही था। Open the bracket and simplify. Every term will get cancelled out with each other, equal to 0. यही आपको प्रूफ करना था, वेरीफाई करना था, hence done.
तो रिकॉल द फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव्स, जो बेसिक फार्मूलाज हैं कि x पावर n का डेरिवेटिव nx n माइनस वन होता है। अब यहां आपको क्वेश्चंस वो मिलेंगे जिसमें डेरिवेटिव भी यूज करना होगा और इंटीग्रेशन भी यूज करना होगा, दोनों चीजें एक साथ हैं। तो फार्मूला इनिशियली माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, तो प्रैक्टिस उसकी अच्छे से याद करिए। So based on this, we have exercise 9.2. In each of the exercises 1 से लेकर 10 तक क्या कह रहे हैं? Verify the given function is the solution of the corresponding differential equation. So let me randomly choose second question. Y आपको दिया हुआ है और चेक करना है कि वो इसका सॉल्यूशन है। बेसिकली ये क्या लिखी है इक्वेशन? dy by dx माइनस 2x माइनस 2 is 0. y गिवन है, फाइंड इट्स डबल डेरिवेटिव, ओ सॉरी डेरिवेटिव, 2x प्लस 2 आ जाएगा। बस अब आपके सामने ही है, आप LHS कंसिडर करेंगे, dy by dx की वैल्यू जो अभी निकाली थी सब्स्टिट्यूट कर दिया and open the bracket equal to 0, hence it's a solution of the given differential equation. That's it, your required answer. Rest to in your homework. Similarly next 3 questions का मैंने collection लिया था जिनमें से 4th and 6th are solved for your reference. Everyone please check out this 4th का solution यहाँ है, इसे देखिए ध्यान से। y दिया है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉरस्पॉन्डिंगली ये इक्वेशन का सॉल्यूशन जस्टिफाई करना है, दैट dy by dx इक्वल्स xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए y गिवन था, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो गया और इनटू अंदर वाले का चेन रूल। तो मेक इट श्योर कि ये डेरिवेटिव निकालना आता है आप सभी को। 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया मेरा y डैश। अब देखिए मैंने क्या किया है, मुझे ये आंसर लाना था जिसके अंदर स्क्वायर रूट इज नॉट इन्वॉल्व, तो मैंने रूट वाली टर्म से रैशनलाइज कर दिया और ऊपर क्या लिखा गया, दिस इज नथिंग बट y ओनली, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो न्यूमरेटर में तो इसकी वैल्यू मैंने y लिख दिया और नीचे क्या हो गया, इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू जस्टिफाई। प्लीज स्टॉप मी जहां भी कहीं आपको डाउट लगे। ये बेसिक फंडामेंटल वैसे चीजें डेरिवेटिव्स में किया है, इसलिए आई माइट बी लिटिल फास्टर। 6th क्वेश्चन, चेक इट आउट। y गिवन है x sin x, सो प्रोडक्ट रूल से स्टार्ट करेंगे। यस, सो y डैश निकाल दिया आपने और अब मैंने LHS को कंसीडर किया अलग से, x y डैश की वैल्यू पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन कंसीडर RHS,
यूजुअल मेथड है, RHS को कंसीडर किया, y की वैल्यू रिप्लेस कर दिया, ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, LHS एंड RHS इक्वेशन 1 और 2 सेम आ गई, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाई करा कि y इक्वल टू x sin x जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेटर हम रिवर्स में बात करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। यहां पर अभी सिंपल केस दे दिया है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि वो सॉल्यूशन है। चेक आउट वेरी सिंपल क्वेश्चन। नंबर, कैन एनीवन आंसर 11th क्वेश्चन? MCQ है, 11th का क्या होगा आंसर? And please mark your attendance. I forget to mention that. Please mark your attendance, everyone. Anyone? The number of arbitrary constants in a journal solution. और नेक्स्ट पार्ट को भी देख लो, सिमिलर है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। तो बताइए 11th का आंसर क्या होगा? आर्बिट्ररी कांस्टेंट और जर्नल सॉल्यूशन है। जर्नल सॉल्यूशन के अंदर 4 हो जाएंगे, और जब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कह रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में तो हम उनको स्पेसिफिक वैल्यूज दे चुके हैं, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बचे ही नहीं है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट उस केस में 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप चेक करें, बात करी जाती है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, and this is for your NCERT exercise 9.3, but this is deleted as per the reduced syllabus. And since time is also a very crucial and important matter, so I will not talk about this, how to form the differential equation. Those who are interested, competitive में तो रहने वाला है, that you can always cross check, but I will not discuss this. Further check it out. अब हम बात करेंगे about various types of differential equations and how to solve them. So we'll be taking in 12th class 3 different types of differential equations: the variable separable, homogeneous differential equation, and linear differential equation. So we'll be discussing each and every one of them one by one, and we will also learn the method of solving these differential equations. So to begin with, first one is variable separable method. So how to identify that my given differential equation is a form of the variable separable? Let me consider one direct question. When I look at the question, language यही होने वाली है, find the general solution या particular of the following differential equation. ये तो चलो कंडीशन दी है, normally even if I do not take care of it, no problem. आप अगर ध्यान से आइडेंटिफाई करें इस क्वेश्चन को, नोट केयरफुली, if I rearrange
y वाला एक तरफ कर दो सब कुछ, और ये dx RHS में आकर ऐसे हो जाएगा। मैंने क्या किया है, वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं। सो आई कैन ऑलवेज एक्सप्रेस दिस सच दैट x पूरा एक तरफ आ गया, y पूरा एक तरफ आ गया। So this is variable being separated. After this we say integrate both sides. Derivative and integral, they are the anti-process to each other. ये याद रखिए। तो ये इंटीग्रेट कर दिया बोथ द साइड्स। अब LHS को ध्यान से देखिए, दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, 1/√a² माइनस x² वाला फॉर्मूला, विच इज साइन इनवर्स y/2 हो जाएगा। इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx। लॉजिकली ये इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव देखिए ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो बच जाएगा सिर्फ x। और याद रखिए मैंने इंटीग्रेट करा है, तो दोनों तरफ देखा जाए तो इनके कांस्टेंट ऐड होते हैं, बट हम एक ही जगह कहीं पर भी कांस्टेंट लिख देंगे, आपकी चॉइस है। जनरली हम RHS में लिखते हैं, आप LHS में भी लिख सकते थे। तो कन्वेंशनली राइट साइड में लिख दिया, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बट I can even further simplify this. साइन इनवर्स RHS में आकर साइन ऑफ x प्लस सी बना देगा, ये इधर आ जाएगा, और फाइनली इससे y कितना आ गया, 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस सी। सो इट इज प्योरली योर चॉइस, आप ये आंसर छोड़ दीजिए या एक स्टेप आगे सॉल्व कर दीजिए, दैट ऑल डिपेंड्स। आई वुड प्रेफर गो अ स्टेप बियॉन्ड, तो जो मैंने जो लास्ट में लिख के दिखाया है वहां तक कर दीजिए, बट जनरली ऊपर भी छोड़ देंगे, मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड। MCQ में आ गया तब आपको ऑब्वियसली वेरीफाई और आइडेंटिफाई करना होगा कि विच आंसर इज suitable. Everyone check out this question. Find the general solution of this differential equation. There is a simple observation and it is all about observation. तीनों तरह की differential equation जब discuss हो जाएंगी, उसके बाद main question या doubt क्या रहता है, which particular form is applicable, कौन सा differential equation है। So here you can easily identify. एक तो याद रखिए dx and dy must be always in numerator. Obviously dx and dy must be in the numerator. तो dy तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी है, अकॉर्डिंगली मैंने इसको नीचे लाकर 1 प्लस वाई स्क्वायर ले आया, और dx आ जाएगा फिर आपका RHS में ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ वन कैन इजिली नोट वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, वेरिएबल बीइंग सेपरेटेड। अब इसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार लिखें कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, आप इसके बाद डायरेक्ट अगर ये भी लिख देते हैं या ऊपर के स्टेप में ही इंटीग्रल का नोटेशन लगा दें, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपका 1 मार्कर है या एट द मोस्ट 2 मार्कर। बहुत सिंपल है। अब इसका इंटीग्रल क्या हुआ, tan इनवर्स y, इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x हो गया, बट कांस्टेंट को मत भूल जाना, प्लस c, योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप चेक करिए, इसका जो मैंने सॉल्यूशन निकाला है, मैं इसको अगर फर्दर थोड़ा सा और सोचना शुरू करता, क्या मतलब, tan इनवर्स
y माइनस tan इनवर्स x मैंने एक तरफ कर दिया, और ये अब फार्मूला आ गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। फार्मूला चेक करिए, ये होता है tan इनवर्स राइट साइड में आ गया, tan c क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और फाइनली x RHS में ले आऊंगा, तो x प्लस tan c इंटू 1 प्लस xy, योर रिक्वायर्ड आंसर। तो चेक करिए, आंसर मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ये भी आ चुका है, इट इज ऑलरेडी फाइनल योर रिक्वायर्ड आंसर, बट दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू हैव दिस आंसर। अदर वे, इसके आगे मैं और अलग वे में भी इसे एक्चुअली सोच सकता था, और वो क्या होता, मैं इस c को लिख देता, मान लो कांस्टेंट ही तो है, tan इनवर्स c, दैट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। फिर मैं यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c का फार्मूला लगा देता, तो ये क्या बन जाता, tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स, टेकिंग tan बोथ साइड, y आ जाता x प्लस c अपॉन 1 माइनस सी एक्स। So this can also be treated as its required answer. तो सेम क्वेश्चन, और आपके सामने इसके 3 डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं। चॉइस ऑफ मेथड इज योर्स। So this is the question for your homework. Everyone, please make a note of it and this question. ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे। I'll share the PDF with you all. You can check that out. Please mark your attendance, everyone. If you have any doubt, you can stay, or else you can now leave the class. Have a good day. Chaliye, please mark your attendance and then you can leave the class.